Hi everyone, hi my bacha party, what's up? I hope that you're all doing well, right? Right. So today I have brought for you the part 2 of State of Economy, that is the chapter 1 of volume 2 of Economic Survey. So this particular video is also in detail. So आप समझ गए होंगे detail means अगर है patience, and also if you are having time and if you want to learn something very substantive and comprehensive, so you can be a part of this lecture and important for UPSC and all the state PSC grade 1 examinations. Okay, so and that's all it is, and this is me Syed Shiatullah. Let us go ahead with our lecture. Hi everyone, hi my bacha party, what's up? I hope that you all doing well. So this is me Syed Shujatullah, and you all know that what we have learned till now. We have learned. So before that, if you want to be a part of my Zoom classes, so you can just call me or WhatsApp me on this number. If you're so introvert, what can you best do is you can just mail me, put a mail. I just see through it and help you to guide you and solve your issue. Fine. So चलो. तो हमारी लास्ट क्लास में हम spread of pandemic across the countries we have learned across the world how the COVID has performed, what are the number of cases, कितने मरे, कितने active cases है. This particular graph properly we have interpreted in our last video lecture. Apart from that, ये भी हो गया था. Apart from that, spread of pandemic in India. So you might know that world में हम देख लिए, India में हम देख लिए in our last class. Okay, so today what we are going to see is this doubling time kind of stuff also we have learned in our last class. So today we are going to see that spread of pandemic not only in totality with India, which we have already learned yesterday in our last video. Today we are going to see how the COVID has affected different regions of our country. Different regions of our country. Okay. So you can understand here that this is our India. This is our India, and this region is called as southern region. Remember this point, southern region. Like you can include here Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh. Southern region. Okay, Maharashtra sometimes would be in the western region also. And this region is called as Western Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Punjab. Western region. And this region is called as Central. Like Delhi we are having here, UP we are having here, Madhya Pradesh, Chhattisgarh we are having, Jharkhand we are having, Odisha. This is called as northern region. And you all aware of this fact that ये हमारे seven sister states. Okay, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, okay, and Manipur, Nagaland, Tripura. So ये north eastern states है. And northern India, you know, this is the northern India, right? This is the northern India, Jammu and Kashmir. And we are having Himachal Pradesh, we are having Uttarakhand, we are having, right? These are all the different regions and different states classified. So we are going to see that how a region has been affected. तो अलग अलग regions में COVID कैसा कैसा affect करा ये अपने को देखना है. ठीक है, चलो let us go ahead. कहाँ गया मेरा मार्कर छुप गया था, मिल गया. ओके फाइन. तो आप देखो सेंट्रल रीजन, तो हम ऊपर से शुरू करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये हमारा है ग्रीन रीजन. कहाँ है? वेस्टर्न इंडिया. जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ये क्या है? वेस्टर्न इंडिया है. यहाँ पे देखो शेयर इन क्यूमुलेटिव कंफर्म केसेस. बोल तो पूरे केसेस में इनका शेयर सबसे ज्यादा था. ये 4 स्टेट्स का शेयर सबसे ज्यादा था. 60 to 80% था. स्लोली 60 से कम हुआ, 70 हुआ, 70 हुआ, अभी उनका कम होते गया. Okay, so you can understand this that they have decreased over a period of time. In the same way, the rest also followed. And remember one point here, ये जो हमारा मेरा बोल के you can say like तेलंगाना. Okay, जो रेड कलर में आता, रेड कलर इज व्हाट? साउदर्न इंडिया. आई टोल्ड यू साउदर्न इंडिया बोलते क्या? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये है हम साउदर्न इंडिया. हमारे पास यू ऑल नो दैट जब कोविड ब्रेकआउट हुआ था तो नॉर्थ इंडिया में था, हमारे पास वो था भी नहीं. ओके, हम तो ऐसे ही घर में बैठ गए थे ऐसे ही हम बंद कर दिए थे, हमारे पास था भी नहीं. बट वो बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए, हम भी पीक पे चढ़े, फिर कम भी हुए, वो सब हुआ ही. बट जो बिगिनिंग के जो मंथ थे, मार्च अप्रैल, कुछ था भी नहीं हमारे पास. दैट्स व्हाई देखो अप्रैल और मार्च अप्रैल मई में हमारे पास बहुत कम थे. बट स्लोली दे रोज. हमारा शेयर इन क्यूमुलेटिव केसेस विद रिगार्ड टू द टोटल कंट्री, पूरे कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में जो भी हमारा शेयर था
हमारा शेयर इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। यू कैन सी द ये बड़ा हुआ, ये इसकी विड्थ बड़ी हुई तो बड़ा। ओके एंड सबसे किस्मत वाले भाई ये लोग आए हैं छोटू। ओके ब्लू वाले क्या है, ये सेंट्रल सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और ये जो ऑरेंज है, वेरी हैप्पी पीपल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये लोग भी आराम से बैठे, तो इनको भी ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, उनके केसेस कम थे विद रिस्पेक्ट टू द शेयर ऑफ ऑल अदर रीजन्स, उनका परसेंटेज वाइज कम था। ओके सो इफ द क्वेश्चन कम्स दैट ये है ओके तो ये जो ऑरेंज है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया is the least the state which is having least number of cumulative confirmed cases कौन सा, means you can say sir it is northeast India, right? Okay, the state which is having the highest number of cumulative confirmed cases, so you can rightly say that is our okay what is that green color one, western India. So you can also say in this way that here you're having western India, and also this is red color one is what, red color one is southern India. Western India and southern India has got more than 50% of cumulative confirmed cases with respect to other regions. तो इनके ही 50% थे। अगर समझो इंडिया में 100% थे पूरे रीजन्स को मिला के, 50% सिर्फ ये दो रीजन से आते थे, तो यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिव था कोविड। ठीक है, तो लेट अस गो अहेड, लेट अस सी अनदर स्लाइड। ये क्या है, इन्फेक्शन वेव्स। तो ये जो सदर्न इंडिया में एक ही बार आया, पीक पे चढ़े हम लोग। ओके हम चढ़े फिर बहुत उतरे आराम से। ओके ना न्यू केसेस कम हो गए, न्यू केसेस बढ़े, 8 लाख तक गए फिर कम हो गए। और यू कैन सी दैट ये जो हमारे पर्पल वाले हैं कौन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये लोग हमेशा नीचे ही है, बिकॉज वहां पे इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। व्हाई डू आई से दिस मीन्स, सी आपको पता है in our country all the regions are not properly developed, all the regions are not properly developed, you all know this fact. Okay, all regions are not equally developed, every one of us know it. Why? Because okay so fine, you know that Maharashtra is having like 18% it contributes to the GDP, and Tamil Nadu contribute around 14%। और अगर आप कर्नाटका ले लो, तेलंगाना ले लो, एक 4-5 स्टेट्स है, 4-5 स्टेट्स इन अवर कंट्री contributes 50% of the GDP, rest 22-23 states are contributing 50% of the GDP। with this आपको समझ में आ गया हो गया कि हमारे पास थोड़े स्टेट्स है that actually runs the economy एंड थोड़े स्टेट्स है जो डेवलप है। और आप ये भी देखे होंगे, ये भी देखे होंगे आप कि अब यहाँ बिहार से और यूपी से उत्तराखंड से यहाँ से लोग आके बेंगलुरु में काम करते हैं, हमारे हैदराबाद में काम करते हैं, या मुंबई में जाके काम करते हैं, ड्रीम सिटी में जाके काम करते हैं। और यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, वहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, वहाँ पे सर्विस सेक्टर हार्डली फ्लोरिश हुआ। बिकॉज यू नो दैट हम कौन सी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वेयर वी डू इन्वेस्ट अवर मनी, वेयर वी गेट प्रॉफिट्स। ठीक है, ये तो कॉमन है, वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे अपने को पैसा आता। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पैसा है ही नहीं, वहां के लोग क्या डिमांड करेंगे, आप लेके जाके वहां पे बड़े बड़े कार्स बेच नहीं सकते, बिकॉज वहां पे आमदनी ही है नहीं, खरीदते क्या वो लोग, दे डोंट। ओके दैट्स वाई जब वहां पे आप डीलर शॉप्स नहीं है, होलसेलर शॉप्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ ज्यादा अच्छे स्केल पे होता नहीं, तो वहां पे रिक्रूटमेंट होता भी नहीं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आता भी नहीं। सो these people definitely these people from this region they move to here। the same case goes with what यूपी बिहार में भी यही मसला है, चाहे छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो यहाँ पे भी उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो ये दे मूव टू हैदराबाद, दे मूव टू मुंबई, दे मूव टू बैंगलोर, दे मूव टू दिल्ली, एंड यहाँ पे वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते। दैट इज वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो अब आना जाना ही यहाँ पे से लोग यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट ये लोगों को ये दिस रीजन इज वेरी लेस अफेक्टेड, बिकॉज एवरीवन इज एक्चुअली इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो वैसा हुआ था, तो आपको तो मालूम है बिहार यूपी के लेबर से कितना प्रॉब्लम हो गया था। ओके सो वहां से वहां चले गए जहाँ अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट, हम भी तेलंगाना से हमारे केसीआर साहब भेजे, यहाँ से भेजे, अच्छी ट्रेन रख के भेजे, तो हुआ था। तो इसलिए ये जो रीजन है ना, नॉट दैट मच ऑफ इफेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट था नहीं, यहाँ पे लोग थे भी नहीं, तो दे आर ऑलरेडी हियर, सो देयर इज नो मच इफेक्ट इन दिस रीजन ऑल्सो। ठीक है, चलो तो आप ये समझ सकते हैं, लेट अस सी सम डेटा।
जब पैंडेमिक आया था, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न जोन्स, ये और ये दो जोन्स, ओके, these two zones are having 40 to 22 percentage of total cases. बोलते 40 and 22 बोलते कितने हुए, 64% of total cases in the country belong to these two regions only, these two zones only, and eastern and central regions constituted 10%. So if in exam, if they give you the statement one दिए देके बोले, okay, according to economic survey, central and northern zones constitute around 50% of cases, means right, and the another one, eastern and central regions constitute only 10% of confirmed cases, that is also right. तो statement में पूछता, याद करने का डेटा है, यू शुड नो इट। और अगर इंटरव्यू में इफ दे आस्क यू द रीजंस, मैं अभी जो डिस्कशन करा वो पूरा बोलो, ओके। एंड द सेकंड पॉइंट आई हैव टोल्ड यू, हमारा तेलंगाना, तो शार्प इंक्रीज इन शेयर ऑफ सदर्न जोन। मैं बोला क्या, नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ था, हमारे पास आए आए तक बहुत टाइम हो गया था, तो हमारे पास पहले तो कम थे, मार्च अप्रैल मई में, बाद में बढ़ते गए। सो वी हैव सीन शार्प इंक्रीज ऑफ केसेस इन सदर्न रीजन सिंस जुलाई से बढ़ना शुरू हुआ, ठक 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 ठक, right, with zone adding more than one third of the new cases। और हम तो पूरे में हम स्टार्ट करें कि पूरा सबसे आगे हो जाते, तो हम स्टार्ट तो करे नहीं थे, मार्च अप्रैल में हैप्पीली वी सैट, एंड इन जून वी टुक अ रेस लाइक एनीथिंग, एंड वी बिकेम द रीजन विद हैविंग वन थर्ड ऑफ confirmed community cumulative cases, okay, one third new cases per month, okay। बोल तो अगर 100 केसेस पूरी इंडिया में आ रहे थे तो वन थर्ड हमारे रीजन से आ रहे थे, इतना ज्यादा हो गया था। आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट्सअप कर दो, नहीं समझ में आया तो मेल लिख दो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, काम ही वही है। तो ओके, all zones barring northern region experience a single way of infection, okay, all zones, okay। So where is our northern region, ये हमारा डब्बा, ये जो डब्बा है northern region, तो barring the northern region experience all other, so northern region बड़े कम है फिर बड़े, are you able to see? Yeah, you are able to see, I know that you are able to see। So इंक्रीज हुए फिर कम हुए फिर इंक्रीज हुए, अब फिर डिक्रीज हो रहे। सो ऑल स्टेट्स हैव नॉट गॉट टू वेव्स ऑफ इन्फेक्शन, कम ज्यादा होना, ओके। ओनली नॉर्दर्न रीजन हैज सीन व्हाट टू वेव्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इसलिए दिल्ली में हाल हाल में, यू मे बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उनका सेकंड लॉकडाउन भी हुआ था। हम अपने पास नहीं हुआ था, उनके पास हुआ था, वो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में हुआ नहीं था। कर्नाटका में भी लॉकडाउन सेकंड वेव हुआ था, ओके। एंड द फेस्टिव सीजन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर लेड टू द सेकंड वेव। क्यों हुआ था वो रीजन भी दे दिए। नॉर्दर्न रीजन में सेकंड वेव इन्फेक्शन वाइट एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, आई थिंक कुंभ मेला कुछ था। इन पर कैपिटा टर्म्स द सदर्न जोन हैड ए मैक्सिमम केस लोड, ओके, 1 लाख में 1226 केसेस, सदर्न जोन, दिस जोन हमारा जोन, 1 लाख 1226 cases by 1 lakh. This is our performance. Followed by Western zone, ये वाला, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला, महाराष्ट्र, गुजरात वाला, okay. Yeah, 1 lakh 1124 by 1 लाख केसेस, 1 लाख केसेस को हम 1 लाख केसेस को टेस्ट करें तो 1200 सदर्न रीजन में और 1100 कहाँ पे, वेस्टर्न रीजन में केसेस आए। And again, our eastern region is always safe because of less development. Their workers may move from other to other places, so they will definitely see what, less number of COVID cases. The eastern region had the lowest case load. Okay, 342 cases आए, 1 लाख लोगों का टेस्ट करें तो बस 342 cases आए। Happy ever there always। 31st December 2020, तो recently हुआ था। I hope that this particular slide is very clear to you. Let us go ahead। टोटल कंफर्म केसेस पर लाख सी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखे तो थोड़ा अच्छा याद रहता, तो आप भी याद रख लो, ये इसको अच्छे दिमाग में बिठा लो। देखो हम लोग यहाँ हैं, देखो ये हमारी तेलंगाना में कम थे, पहले पहले जबरदस्त बढ़ गए, सबको क्रॉस कर दिया। डार्क ब्लू, ओके, डार्क ब्लू सी, डार्क ब्लू, या 1226 डार्क ब्लू, थोड़ा कम ये दोनों, उससे कम, उससे थोड़ा, okay। So you can see that the more we are going, so northeastern region, okay, and this is
दिस इज कंफर्म केसेस पर लाख, राइट, फाइन। तो यहाँ पे तो ये रीजन में कम हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कम होते गए। ओके यहाँ पे नहीं थे बोल के नहीं थे, बट आई वी हैव लर्नड इन कंपैरिजन, नो, सो फॉरगेट अबाउट दिस एंड दिस, व्हाट जस्ट रिमेंबर, ये याद रखो बस। डेथ स्टैट्स अब तो कंफर्म केसेस हुए थे, अब 1 लाख में 1200 लेट सपोज केसेस आर कंफर्म, अब इनको हॉस्पिटल में लेके गए अपन, अब इनका ट्रीटमेंट चला, तो मरे कितने और घर को वापस लौटे कितने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेथ स्टैट्स। ओके, as on 31st December 2020, 1.48 lakh, okay, with more than 50% of fatalities occurring in western and southern regions. ओके अगर 100 लोग मरे, वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन से बिलोंग करने वाले 50 लोग थे, 100 लोग मरे तो वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन से बिलोंग करने वाले कितने थे, 50, सो वी कंस्टिट्यूटेड 50% ऑफ टोटल डेथ इन अवर कंट्री, टोटल डेथ इन अवर कंट्री, ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र वर्स्ट अफेक्टेड, अब तक तो सुने महाराष्ट्र में, तो मैं तो देख रहा था न्यूज में, तो मंडी में, रईतु बाजार में मस्त तो घूम रहे थे लोग, हम मार्च अप्रैल मई में, तो समझ जाओ वहां पे तो होगा ही होगा। महाराष्ट्र हैज अ वर्स्ट अफेक्टेड। ओके, per capita terms में the western zone has been the worst performance with 27 deaths per lakh, 27 deaths per lakh। ओके, ये परसेंटेज वाइज था। ओके, दिस इज व्हाट परसेंटेज वाइज, दिस इज व्हाट पर पर्सन मीन्स नंबर से देखा गया तो 1 लाख में 27 डेथ महाराष्ट्र में वेस्टर्न जोन में हुए, ऑन एन एवरेज वेस्टर्न जोन में हुए, ये दो वेस्टर्न जोन में हुए, फॉलोड बाय नॉर्दर्न रीजन, ये जोन था नॉर्दर्न रीजन, 13 deaths per lakh, and eastern and northeastern chota chota, so northeastern again you see very less number of deaths per capita happen, per capita deaths, you can say per capita deaths very 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 low with regard to eastern zones, so 1 लाख में सिर्फ 4 मरे, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न में, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है ना यहाँ के, ओके, यहाँ पे असम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये जो 7 सिस्टम स्टेट्स है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, यहाँ पे 1 लाख लोग कंफर्म केसेस के थे तो सिर्फ 4 लोग मरे। ओके, और सबसे ज्यादा कहाँ मरे, वेस्टर्न जोन में मरे, 27 ह्यूज अमाउंट है भाई, जिंदगी है, किसी के भाई किसी की बहन तो होते, तो दुख तो हरेगा। ओके, टोटल डेथ्स पर लाख। ओके, सो द सेम थिंग वट एवर वी हैव लर्नड हियर, हम यहाँ पे जो भी पढ़े, ओके, डेथ्स, ये तो परसेंटेज वाइज का डेटा यहाँ पे है, टोटल डेथ्स का डेटा यहाँ पे, टोटल डेथ्स पर लाख, सो यहाँ पे देख लो आप, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थे 28, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात वेस्टर्न जोन को मिला के कितने थे, 28 ज्यादा थे। ओके, एंड फॉलोड बाई थोड़ा ये सो सबसे कम कहाँ है, देखो वो वेरी वेरी लाइट कलर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्टर्न, चार चार सिर्फ 4, ये भी आप याद रखो, द डेटा मैं ये इसलिए इंक्लूड करा, द जोन्स, ये जोन सदर्न जोन, ये ईस्टर्न जोन, ये ईस्टर्न जोन, ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ये सेंट्रल जोन, ये नॉर्दर्न जोन, ये वेस्टर्न जोन कौन बनाए। Okay, the zones are defined as per the zonal council. Zonal councils are those councils which are created by the constitution itself. Okay, आप इसके बारे में पढ़ लो, आपको मालूम हो जाता है। Okay, polity का है वो, that is a polity topic. Okay, and the total the deaths and whatever the report is there with regard to COVID, the statistics has been given by whom? Ministry of Health and Family Welfare. Very 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 important point for the examination purpose. इनका तो separate बना ही लिए लोग, वेबसाइट, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम पास नहीं हो रहा, घर में पढ़ना दिल नहीं बोल रहा, तो ये वेबसाइट पे जाओ, टाइम पास करो। एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग दैट मींस जरूरत नहीं है, मत जाओ। ओके, देन गवर्नमेंट रिस्पांस, चलो भाई इतना सब हो गया, रीजन इफेक्ट हो गए, तो गवर्नमेंट रिस्पांस देना ही है। गवर्नमेंट क्या करी पहले, रैंपिंग अप टेस्टिंग, चलो भाई अब पहले टेस्ट करना शुरू करेंगे, और जिसको कंफर्म आया उनको क्वारंटाइन कर देना है, आइसोलेट कर देना है, so that they should not mingle with society and they should not become a super spreader, they should not initiate a chain of infection, तो उनको अलग करो। ओके, टोटल टेस्ट वर्सेस कंफर्म्ड केसेस पर लाख, टोटल टेस्ट पर लाख, तो ये ऑन एन एवरेज टेस्टिंग कितनी हुई, हो गया 3 लाख हुई, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, टेस्ट पर लाख, क्या है वो, टेस्ट। तो पूरे दुनिया में ऑन एन एवरेज 3 लाख लोगों का टेस्ट हुआ। ओके, टोटल टेस्ट पर लाख, टोटल केसेस, कंफर्म केसेस क्या है, कंफर्म केसेस देखो इतने थे,
1719 3 लाख लोगों को अगर हम टेस्ट करें ऑन एन एवरेज अक्रॉस द वर्ल्ड हम जब निकाले, ओके अक्रॉस द वर्ल्ड हम जब निकाले ऑन एन एवरेज 3 लाख टेस्ट में यू विल फाइंड अराउंड 1800 केसेस आए, कंफर्म केसेस आए। ठीक है, समझे? आई थिंक यू गॉट इट। देखो अब हम कहाँ हैं, हम ढूंढो यहाँ पे ढूंढना है अपने को। देखो हम यहाँ हैं, ओके इंडिया, लेट्स गो हियर। 2 लाख करे तो हमारे पास लेस देन 1000, ठीक है, ये 1000 है तो ये 500 होगा शायद, तो 500, तो हम 2 लाख करें 500, सो हम वर्ल्ड एवरेज से भी कम है केसेस। इट मींस व्हाट, वी परफॉर्म्ड ऑसम, वी परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली, इट मींस करेक्ट या। अभी देखो हमारे यूएस साहब का, देखो इनका देखेंगे क्या है इनका मसला, क्या है इनका। यूएसए 8 लाख करे, केसेस भी जबरदस्त आए, केसेस भी जबरदस्त आए, 6000 तक केसेस आए। 8 लाख ऑन एन एवरेज, 7 लाख लोगों का टेस्ट करे वो लोग, and they have got what 6000 cases. So whatever it is, we have done very good, okay, with regard to test and the number of confirmed cases. It means what, हम इतने टेस्ट करें, confirmed cases हमारे कम आए, it means what, government has literally done very well. Our health system has given a very prompt, very reliable and very quick response to the COVID-19. Okay, everyone was on a tip of the toe, right? Okay, तो एंड सब काम करे, अच्छा हो गया। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करा, यूएस का एक करा, ओके वर्ल्ड एवरेज का कर लिया, इंडिया का कर लिया, बस बहुत हो गया। खाली याद रखो कि हमारे टेस्ट, हम जितने टेस्ट करें उसमें जितने भी केसेस आए वो वर्ल्ड एवरेज से कम आए तो खुश हो जाओ, बिकॉज हम अच्छा परफॉर्म करें। What about India? In January 2020, India had only one laboratory testing for COVID, okay, which is nothing but National Institute of Virology, Pune. Abhi 2300 laboratories are there. तो हमारे रैम्पिंग अप टेस्टिंग हुई ना, रैम्पिंग अप टेस्टिंग, तो इतना केसेस आ रहे तो वी हैव व्हाट, रैम्प अप टेस्टिंग मींस व्हाट, इंक्रीज टेस्टिंग हम शुरू कर दिए। एक लेबोरेटरी थी, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये जीके में ये छोटे छोटे चिल्लर एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में ये पूछता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशंस देखे, यहाँ पे 4 प्लेसेस देखे, मैच द फॉलोइंग में पूछता। सो वी डू क्लियर अबाउट दैट आल्सो। सो वन laboratory was there to test. अभी 2300 laboratories are there across the country performing molecular test for its diagnosis. बस it is an unparalleled achievement in the history of Indian health system. जबरदस्त है। सो हमारे मोदी साहब, ओके, एक स्लोगन दिए, द स्लोगन, और यू कैन से दैट हमारा फोकस, उन्होंने बोले क्या बोले, टेस्ट करो, उसको पकड़ो और ट्रीट करो। टेस्ट करने के बाद कंफर्म आ गया, भाग गया उन्हें, ओके, so he just ran away and track him. For that purpose, you know that the government has introduced Arogya Setu app. Okay, इसमें government, so what happens is you are confirmed with COVID, you are confirmed with COVID, hospital management, what they will do, they will put your name or they will put your details in Arogya Setu app. The moment that person comes near to you, वाइब्रेट होता, आप जल्दी जल्दी दूर हट जाना, ये है। इसलिए बोले सबको आरोग्य सेतु ऐप डाल लो, बोले क्यों, यू विल नो दैट टू whom you are contacting, to whom you are interacting. Now got it, I think you got this also. India has tested nearly 18.5 crore cumulative covid samples. इतने 18 करोड़ हम टेस्ट करें, बस याद रखो, क्योंकि पूरा टेस्टिंग का ही मसला है। ओके, स्लाइड्स हो, टेस्ट करें हम, ठीक है। अभी गवर्नमेंट के पास डायलेमा था, क्या डायलेमा था भाई, लोगों को बचाएंगे या उनकी जिंदगी को बचाएंगे। लोगों को बचाना लाइक लॉकडाउन करना, या उनकी रोजगारी को बचाना, ये दो थे। लोगों को बचाओ, रोजगारी को बचाओ, किसको बचाओ। लोगों को बचाना बोले तो लॉकडाउन करना, लॉकडाउन करे तो क्या है, प्रोडक्शन रुक जाता, एम्प्लॉयमेंट रुक जाता, डेली वेज लेबर्स काम नहीं कर सकते, फिर उनको पैसे नहीं आते। ये जो सुपरमार्केट में काम करने वाले हैं, ये कपड़े के दुकानों में काम करने वाले हैं, ये जो मैकेनिक्स है, ये जो टमाटर बेचने वाले हैं, ये जो माउस बनाना बेचने वाले हैं, ये जो पूरे लोग हैं, कहाँ जाना, बार्बर्स है, ब्यूटिशियंस है, तो ये लोग कहाँ जाना, राइट। तो या इनकी रोजगारी बचाना है या उनकी जिंदगी बचाना है। गवर्नमेंट का क्या था, ये डायलेमा था। ओके, व्हाट इज दैट, गवर्नमेंट डायलेमा। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी, पहला क्या था, वी हैव टेकन स्टेप टू फ्लैटन द कर्व। जो ये कर्व यूं था, इसको हमको फ्लैट करना था, ऐसा।
तो डिक्रीज करना था, क्योंकि और इंक्रीज होने दे नहीं सकते ना अपन कोविड के केसेस, तो हमको फ्लैट बनाना था। अब फ्लैट बनाना था तो हम सब कर लिए, क्वारंटाइन कर दिए, वो कैंडल कर दिए, वो टन 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 वो सब कर दिए, सब जने घर में बैठ के बात खत्म। Okay, so we responded to the call of our prime minister and that was all good, everything was nice and awesome. तो हमारा पहला क्या था, जो हमारा कोविड केसेस बढ़ रहे थे, ये कर्व को हम फ्लैट करना था। सो बिकॉज वी वांटेड टू ट्रांसमिशन स्पीड नहीं होना, एम्पलीफाई नहीं होना, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसमिट नहीं होना, वी वांटेड टू फ्लैटन द कर्व। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू स्लो द ट्रांसमिशन, एक दूसरे से पहलना, ये पहले हमको कम करना था। ओके, तो हम करें, क्वारंटाइन करें, लॉकडाउन करें, पुश द पीक ऑफ द कर्व एंड स्प्रेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ओवर टाइम। ओके, तो स्लो करो ट्रांसमिशन को, ये जो पीक को पुश करो नीचे, पुश द पीक ऑफ द कर्व एंड आल्सो पुश द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ओवर टाइम। पुश बोलता हूँ कम करो, कम करो केसेस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे इधर उधर जा रहे, कम करो। Countries accordingly across the globe adopted various non-pharmaceutical interventions. Non-pharmaceutical means बिना गोलियों के हम एक डिसीज को कंट्रोल करना सोच रहे हैं। बिना गोलियों के मीन्स व्हाट, बिना टैबलेट के, बिना एनी मेडिसिन के, बिना एनी इंजेक्शन के, वी वांटेड टू कंट्रोल व्हाट, द स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे कि समटाइम्स ये रेनी सीजन में मस्कीटो ज्यादा हो जाते तो मशीन आके वो धुआं छोड़ के जाती ना। ओके, यू नो दैट, तो बचपन में अपन उसके पीछे भागते थे, मैं भागता था। फाइन, गॉट इट। जो हम तो नॉन मेनी कंट्रीज नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन बोल तो ये स्प्रेड होने से अपने को बचाने के तरीके। ओके, अपने को बचाने के तरीके गोलियों से, टैबलेट से नहीं करे, बट नॉन फार्मास्यूटिकल करे। सो व्हाट इज दैट नॉन फार्मास्यूटिकल? विदाउट यूजिंग एनी टैबलेट्स, एनी ड्रग्स, एनी मेडिसिन, we are trying to restrict the spread of what, this transmission. That's why we followed social distancing, you know. Okay, schools में, work में दूर दूर ठहरो, दूर दूर ठहरो, travel ban कर दिए, cancellation of public events happened, restrictions of internal movement हो गया, आना जाना एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना कम हो गया। सोशल आइसोलेशन मेजर्स आर आल्सो टेकन। सोशल आइसोलेशन, सोसाइटी से आइसोलेट भी करे, सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए आइसोलेट भी करे, लोगों को क्वारंटाइन कैंप्स बनाए, टेंट्स बनाए। ओके, quarantining affect infected people from the population, tracing infected person, okay, tracing infected person contacts and enhanced testing। okay, ये तो करे अपन। the containment measures वो तो कम करने के measures allowed ramping up of health and testing infrastructure। तो आपको पता ही है कि number of colleges were converted into क्या बोलते हैं hospitals and they were be provided with beds and all। so infrastructure को we have what, ramp up, क्योंकि more and more cases came, so the number of beds available in the country, हम उनको केसेस जो इन्फेक्टेड है उनको हम लिटाना भी ना, लिटाने के लिए, उनको क्यूर करने के लिए, आईसीयू में रखने के लिए बेड्स भी चाहिए ना, तो बेड्स नहीं थे, तो जल्दी जल्दी हम बेड्स की भी प्रावधान करें, ये तो हम ट्राई करेंगे, ये कंटेनमेंट मेजर्स सक्सेसफुल होना वो पूरा हुआ। So these are all methods very very important. For any pandemic you can write. For any pandemic you can write what are the various non-pharmaceutical measures taken by the government. Means you can write all these words that I have mentioned here. It will become like almost like 60 words. One page, or one side of the paper will be completed. So आपको अच्छे से marks आ जाते हैं। Okay. Trade-off between flattening COVID-19 and infection curve and steepening of recession curve. देखो भाई ये बहुत okay, let's understand this tricky graph. For that, you need what? मैं हूं ना, मैं बोल देता हूँ, I'll tell you, don't worry। देखो भाई, जैसा 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 केसेस बढ़ रहे, हम कंटेनमेंट मेजर्स, क्वारंटाइन रहो, घर में रहो, ये सब बोले, तो जैसा जैसा केसेस बढ़े हमारी इकोनॉमी नीचे गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, राइट और रॉन्ग? द केसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड and we took lot of containment measures। because of that there is no production activity, no employment, shops are closed and everyone was in the homes। so हमारा जब सब घर में है तो इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? इकोनॉमी कब तक नहीं चले? इकोनॉमी कब डिक्रीज होती? when do we say that economy is decreasing? it means when no production जब कम होते रहता ना, that's all, इकोनॉमी कम हो रही बोले ऐसा। so when cases are increasing automatically what is happening? देखो, economic growth is also decreasing। I will change the color because the color same color is not good for us। okay, it's not, no, color same color। okay,
अगेन आई एम गेटिंग द रेड वन इटसेल्फ अगेन. कहाँ है भाई? एक तो है. ओके, ये ब्लू है. सो व्हेन वी आर गोइंग, अरे ये तो सेम सेम है. हाँ, ब्लैक ले लेते, ब्लैक ब्लैक नहीं है, ब्लैक कलर इज नॉट देयर, राइट. So when the number of new cases were increasing, automatically the economic growth was continuously decreasing. जब cases decrease होना शुरू हुए, automatically the economy was increasing or not? Yes. So we call it as what? Trade off. तो यहाँ पे कम होते गया, automatically यहाँ पे बढ़ते गया. This is called as trade off. आपके पास 200 रुपए आप किसी को दिए, 200 रुपए आपके पास कोई आपको दे दिए. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड ऑफ. जितने गए उतने आ गए, जितने गए उतने आ गए. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ. ओके. तो जितना कोरोना कम होते गया उतना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते गया. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी अगेन केम टू द एवरेज में हम आ गए. ओके, ये है हमारा सी स्लीपिंग रिसेशन कर्व. स्लीपिंग बोल तो ये कैसा रिसेशन था बोले तो ये रिसेशन देखो अननेचुरल फैक्टर से आया. ओके, अननेचुरल फैक्टर से आया और एक्सपेक्टेड भी नहीं था. क्या फोरकास्ट भी नहीं करे, हम स्टिपुलेट भी नहीं करे. ओके, तो ये कैसा रिसेशन था बोल तो ये सो रहा था, बस उसको एक पुश चाहिए थी. ये पुश क्या थी? टू लिफ्ट दी टोटल इकोनॉमी. अनलॉक कर देना था, टक 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 टक. जैसा जैसा हम अनलॉक करते गए, अनलॉक 1 2 3 4 फेजेस में करे, द मोमेंट वी स्टार्टेड अनलॉकिंग व्हाट इज हैपनिंग, इकोनॉमी पिक हुई. दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग रिसेशन था. It's not a structural recession. It's not because of monetary policy. It's not because of capital formation. It's not because of saving rate. ये जितने भी मैं टर्मिनोलॉजीज बोला, जिसको नहीं आता उनको समझ में नहीं आता तो डोंट वरी, टेक लाइट, जरूरत नहीं है, आगे के लेक्चर्स में बोल लेता हूँ. बट ये कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ से रिसेशन नहीं आया, ये कुछ प्रोडक्शन कम होने की तरफ से नहीं आया. ओके, ऑटोमेटिकली या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आया. ये क्या था मालूम? बिकॉज ऑफ अननेचुरल फैक्टर्स अपने को इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद करना पड़ा. तो ये हम सो रहे थे. ओके, जैसे ही हम अनलॉक करते गए, हमारा रिसेशन हमारा क्या पिक होते गया. ओके, देन दिस इज अ डिमांड साइड शॉक. डिमांड साइड शॉक. देखो भाई, अब देखो, अगर हम डिमांड करें कुछ प्रोडक्ट्स, मैं कुरकुरे खाया या मैं लेस खाया, इफ आई हैड हल्दीराम्स, इफ आई हैड मोमोज, इफ आई हैड एनी ऑफ द थिंग्स, तो यहाँ पे प्रोड्यूस भी करते, हम पूरे मिलके कुछ खाना शुरू करें तो प्रोडक्शन भी होता, राइट. बट हम तो घर में बैठ गए, तो डिमांड साइड के शॉक्स मिले नहीं मिले, हम मूवी जाना छोड़ दिए, हम ट्रैवलिंग करना छोड़ दिए. सो ये क्या है? हम डिमांड ही करना छोड़ दिए प्रोडक्ट्स को. डिमांड के साइड से शॉक्स मिले. किसको मिले? प्रोड्यूसर्स को मिले. तो ये लोग जब डिमांड है ही नहीं तो प्रोड्यूस क्या करेंगे? नहीं कर सकते. That happened. So increase uncertainty होगी. ओके, क्या अब खुलता जब खुलता, लॉकडाउन अब खुलता जब खुलता, सो अनसर्टेनिटी भी हो गई. तो डिमांड प्रोड्यूस करना नहीं करना, डिमांड बढ़ती कम करती ना मैन्युफैक्चरर को मालूम था और अपने को भी ये नहीं मालूम था कि हम कम बाहर जा सकते नहीं जा सकते. सो ये शॉक मिला. लोअर कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर भी रुक गए. अरे अब गवर्नमेंट अब खुलती, जब खुलती कब जाएंगे? आज. ओके, नहीं नेक्स्ट मंथ, ओके फाइन. तो उनके इन्वेस्टमेंट भी रुक गए. और लॉस ऑफ इनकम्स. अब मेरे जैसे लोगों के तो पैसे चले गए, बिकॉज हम तो छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ा लेते, तो फिर हम कॉलेज बंद हो गए, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो फिर मैं क्या खाऊं? मैं क्या खाऊं? नहीं तो खाना तो है. ओके, लॉस ऑफ इनकम. तो मेरे पास पैसे, तो मैं क्या खरीदूं? तो मैं भी डिमांड शॉक दिया. किसको दिया? प्रोड्यूसर्स को. सो वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्टर्स. अब देखो भाई, इतना डीप में हो गए हम. ओके, यहाँ पे है अपना इकोनॉमिक ग्रोथ. अब पिकअप करने के लिए टाइम तो लगता है ना. तो वीकर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बोलता हूँ, कोई इन्वेस्ट भी करने रेडी नहीं है भाई. अब इन्वेस्ट भी करके क्या फायदा, किसी के पास पैसे है भी नहीं तो कौन खरीदेगा. तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना, जो भी कुछ प्लान प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, बिजनेस शुरू करने वाले थे, वो लोग भी वीकर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के वजह से वो लोग भी नहीं करे. ओके, और बहुत सारे लोग तो फियर ऑफ कंटेगियम, बाहर जाना नहीं भाई, गया तो अपने को भी कोरोना आ जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा सोच लेके ही गए नहीं. ओके, तो फिर डिमांड हुआ ही नहीं, गए ही नहीं, तो डिमांड कहाँ से आएंगे? इफ दे गो देन डिमांड विल हैपन. नो, लो इनकम से कहाँ से डिमांड करेंगे? खाने के लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, तो बाकी का मूवी वूवी किधर देखिए? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. और ये वीकर ग्रोथ प्रोस्पेक्टर्स इन्वेस्टर्स क्यों करेंगे? नहीं कर सकते. ओके, curtailment of spending options due to closure of all contact sensitive activities, राइट. तो ये भी था. कॉन्टैक्ट सेंसिटिव एक्टिविटीज बोलते क्या? स्पा है, जिम है, ये जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव है, वो तो हम कॉन्टैक्ट करें तो ही ये सर्विस ले सकते हैं. ये बार्बर है, ब्यूटिशियन है, ये इसके कॉन्टैक्ट करें तो ही हम सर्विस ले सकते हैं. तो स्पेंडिंग ऑप्शंस भी कम हो गए. अब जो इंडिया में जो लोग स्पेंड करने वाले, ये भी एक कैटेगरी है ना.
तो अब इनर में इनसे कांटेक्ट करना नहीं है, वो लोग घर में कर ले रहे थे ट्रिमिंग एंड ऑल, आई यूज्ड टू डू दैट। सो वेरी कॉमन थिंग। अब शेविंग भी बाहर ही करता था, वो भी घर में कर दिया, तो घर में घर वाले भी, तो हम जहाँ जहाँ भी कॉन्टैक्ट रिलेटेड सर्विसेज है ना, हम पूरे छोड़ दिए। वी हैव स्टॉप्ड ऑल ऑफ दैट, ओके। सो उससे क्या हुआ, डिमांड साइड को जबरदस्त शॉक लगा कि इतने लोग कुछ कर रहे ही नहीं तो ना क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओके। रिस्क एवर्शन अमंग बिजनेसेस एंड रिजल्टेंट फॉल इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, रिस्क भी एवर्ट हो गया। अरे भाई जो जो भी थे बिजनेस में उनको रिस्क रिस्क आ गया, और हमारा कंजम्पशन लेवल्स, इन्वेस्टमेंट लेवल यहाँ पे मैं बोला फॉल हो गया, ओके। सप्लाई साइड का क्या शॉक था, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ लेबर। तो अगर सप्लाई करना है प्रोडक्ट, तो यू नीड लेबर और नॉट, यस, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन और नॉट, यस। जब लेबर ही नहीं है, सब घर में बैठे वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है भाई, ये स्टेट से वो स्टेट तक जा नहीं सकते, कैन नॉट गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। सो सप्लाई साइड से भी शॉक्स मिले, डिमांड साइड से भी शॉक्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग टू मी, हैव ए नाइस डे, आई विल कम विद मोर ऑसम वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।